क्वेश्चन हुआ. नाउ द मीनिंग ऑफ द संधि, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, and synonyms of the word conjecture and guesswork, antonyms of the word certainty, assurance. Now, how can we use this in the sentence? The media's speculation about the celebrities' marriage created unnecessary drama. Now, next word withdrawal. Withdrawal, well known word, WITHDRAWAL. Withdrawal means wapsi. Parts of speech, noun. Now, here is a mnemonics mentioned. If you want, then you can read on the Tayari website. Okay. Now, synonyms of the word retraction and removal. Antonyms of the word deposit and addition. Use the sentence his sudden withdrawal from the project surprised everyone in the team. Sorry. Next word unavailability. Well known word availability, उपलब्धता, unavailability, अनुपलब्धता. Parts of speech, noun. Okay. Now synonyms of the word absence and unaccessibility. Now antonyms of the word availability and accessibility. Now use in sentence the unavailability of the key witness delayed the court proceedings. Now next word, word 4. Farmer, well known. Before means purv. Parts of speech, adjective. Okay. Synonyms of the word previous and prior. Important word, yes. Prior, PRIOR. Prior. Antonyms of the word later and current. Use in sentence the former president of the club attended the anniversary celebration. Next word, squad. यस क्यू यू ए डी स्क्वाड. आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा स्काउट गाइड, पढ़ा होगा ना. तो स्क्वाड इसको आप लर्न कैसे कर सकते हैं? स्क्वाड मीन्स क्या होता है? दल. लर्न कैसे करेंगे? स्काउट ने स्क्वाड को बुलाया. स्क्वाड मीन्स दल. ओके. पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन. स्क्वाड, स्काउट ने स्क्वाड को बुलाया मीन्स दल को बुलाया. ओके. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टीम. यस, एनीवन? Okay. Now synonyms of the word team and group. Antonyms individual and solo. Use in sentence. The football coach selected the best players for the national squad. Okay. Ruled out. It's a games word like cricket. You heard this word again and again after the listening the commentary. Okay. Commentary. Now part of speech, word phrase. And the meaning of this, bahar karna. Ruled out means bahar karna. Synonyms exclude and eliminate. Important word. Eliminate means eliminate karna, remove karna, hatana. Okay. Antonyms of the word include and consider. Now use in sentence. After careful investigation, the detective ruled out. Okay. Ruled out. Foreplay in the case. Now, बैक स्पाइस मैस. बैक स्पाइस मैस, देखिए स्पा क्या होता है? जहां पे बॉडी की मसाज की जाती है. ठीक है. बैक मीन समझते ही हैं. पहले तो ये समझिए व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड. नाउन फ्रेज बैक स्पाइसमस. एंड बैक मीन्स पीठ होता है. स्पाइसमस, स्पा में क्या होता है? बॉडी को मसाज दी जाती है. ओके. स्पाइसमस मीन्स बॉडी को एट. यस. स्पा करना मीन्स क्या होता है? ऐठा ही तो जाता है ना, मरोड़ा जाता है बॉडी को, केयर हाँ, किया मतलब जाता है बॉडी ना. का जो पेन वेन होता है ना, उससे रिलीफ मिलता है ना, हाँ, तो ऐसे उसको बॉडी थोड़ा ऐठने सा लगती है जब. ट्विस्ट किया जाता है. जी हाँ, उसे हाँ, ट्विस्ट की सर्कुलेशन जाती है. सही वेरी किया नाइस. जाता है ना, इससे लगा सकते हैं. एग्जैक्टली. हाँ जी, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं. बैक स्पाइसमस ऐसे लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा. बैक स्पा स्मस. स्पा में बॉडी को क्या किया जाता है? ट्विस्ट किया जाता है ना, ऐठा जाता है. पीठ की ऐठन. तो बैक स्पा स्मस. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड muscle contraction and back pain. Antonyms of the word comfort, relaxation.
Use in sentence, the athlete had to withdraw due to severe back spasms during the game. ग्रोइन इंजरी, ग्रोइन, ग्रोइन से एक वर्ड आप लोग को इससे फीलिंग आ रही होगी, ज्वाइन। क्या आ रहा होगा? ज्वाइन, ग्रोइन, ज्वाइन। तो इसको आप पहले समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन फ्रेज। ग्रोइन इंजरी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन फ्रेज है। और ग्वाइन मीन्स ज्वाइन। ज्वाइन पेन, जो ज्वाइन की चोट होती है, मतलब बोलते हैं ना ज्वाइन की जो चोट होती है, जोड़ों का जो चोट होता है, उसको ऐसे समझिए हिंदी में, उसको बोलते हैं ग्रोइन इंजरी। ग्रोइन, ज्वाइन, ज्वाइन इंजरी, ग्रोइन इंजरी। ओके, नाउ synonyms of the word pelvic injury and pubic region injury. Important word. Okay, pubic region injury. Now, antonyms of the word healthy groin and intactness. Use in sentence, the soccer player had to be substituted due to a severe groin injury. Groin, join. Okay. डेब्यू वेल नोन है, आजकल बहुत आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, इन एक्टर के बेटे ने डेब्यू किया, एक्ट्रेस की बेटी ने मतलब डेब्यू वही किया, से ठीक लगा है रहा ना, डेब्यू। जी हाँ, DEBUT, डेब्यू, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। मीन्स क्या होता है, जब पहली बार हम प्रवेश करते हैं किसी भी फील्ड में, उसको बोलते हैं डेब्यू करना। ओके, नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीमियर एंड इंट्रोडक्शन। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड रिटायरमेंट एंड कंक्लूजन। Use in sentence, the young actress made her debut in a blockbuster movie. Now tied, बांधना, well known, TIED, tied, part of speech, as a verb use होता है, as a adjective भी word use किया जाता है. Okay, now synonyms of the word equal and draw. Antonyms of the word unmatched and unequal. Use in sentence, the intense match ended with both teams tied at the final whistle. नाउ ट्रोलिंग, ट्रोलिंग भी बहुत अच्छे से आप लोग सोशल मीडिया पे होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। ट्रोलिंग मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को, अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ G20 की जो मेजबानी किया, वो किया था, हेड थे हमारे पीएम साहब। अब उनके साथ किसी लेडी को, किसी कंट्री के लेडी को जो वो कर मेलोडी करके उनको ट्रोलिंग की जा रही थी, प्रधानमंत्री के बहुत मीम्स बन रहे थे ना। तो ट्रोलिंग, ट्रोलिंग मतलब किसी पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ ऐसी चीजें, अफवाहें फैलाना, ठीक है, ट्रोल किया जाता कमेंट है। में कभी कभी कमेंट में बोलना कुछ। कमेंट बोलना, एग्जैक्टली, कमेंट करना, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, ये कमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, हालांकि मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं, जो ट्रोल होते हैं नेगेटिव ही होते मैम हैं, कमेंट जो ठीक है। होता है ना वो एग्जैक्ट पोजीशन मतलब होता है, और जो हम लोग देते हैं ना वो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव बोथ देते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना वो हमेशा अच्छे बेस में ही होते हैं, हाँ, जो हम कॉम्प्लीमेंट लोग तो देते हैं प्रशंसा का। हो जाता है, जी जी, हाँ मतलब वेरी होती नाइस, है, जी, लेकिन जो हम देखते हैं ना फोटोज वगैरह में मोस्टली क्या हाँ होता हाँ, है, लिखते तो कमेंट है लेकिन देते हैं हम उसको कॉम्प्लीमेंट। मोस्टली देखो बहुत कम होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्ट होता है। मतलब अगर जी ग्रामेटिकली जी देखें ना जी तो कमेंट्स ये होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं हमेशा। जी, कॉम्प्लीमेंट और कमेंट में डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली, वेरी नाइस मैम। नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हरासमेंट एंड बुलिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड, बुलिंग BULLYING, या एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड praising and appreciation. How can we use this in the sentence? The celebrity ignored the online trolling and focused on her work, ठीक है। Now, up and coming players, parts of speech, noun phrase. अप एंड कमिंग प्लेयर्स मीन्स उभरते हुए जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है अप एंड कमिंग प्लेयर्स। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इमर्जिंग एंड प्रोमाइजिंग। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एस्टैब्लिश्ड एंड सीजनड। नाउ यूज इन सेंटेंस, द टीम इज investing in up and coming players for the future. Now next, कोटेबल, वेल नोन, कोटेशन से कोटेबल बना है, QUOTABLES, कोटेबल्स। नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, उद्घृतियां, समझते ही है, कोटेशंस होते हैं ना जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो शेक्सपियर के दिए हुए कोटेशन हो गए, किसी भी ऑथर्स के हो गए। ओके, नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कोटेशंस, मेमोरेबल फ्रेज। नाउ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फॉरगेटेबल एंड अनरिमार्केबल।
Use in sentence, the book is filled with quotables from famous personalities. Iconic, सबको पता होगा. Iconic means क्या होता है? Famous. It is a adjective. Part of speech, adjective, iconic. Now, synonyms of the word legendary and famous. Antonyms ordinary and common. Use in sentence, the Eiffel Tower is considered an iconic symbol of Paris. Okay. Now, next word referring. REFERRING. Referring, हाँ जी, reference होता है ना, रेफरेंस से बन किसी की संदर्भित रेफरेंस। करना. एग्जैक्टली. हाँ, रेफरेंस देते हैं ना, वैसे यहाँ पे हम्म, रिफरिंग करके इसको एज अ वर्ब यूज किया गया. पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब. रिफरिंग as a verb. Okay. Now, synonyms of the word mentioning and sitting. Now, antonyms of the word ignoring and omitting. Use in sentence, the teacher was referring to a specific chapter in the textbook. Smashing. Smashing, well known word है. ओके. यस एम ए यस एच आई एन जी. स्मैशिंग. अब देखिए, इसको आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं. पहले तो समझिए पार्ट ऑफ स्पीच. एज एजेक्टिव यूज किया जा सकता है, एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है. हम कोई चीज जब मैच करते हैं तो हमें क्या लगता है? उसमें पावर लगता है. ठीक है. कोई भी चीज जब हम मैच करते हैं तो उसे पावर लगाते हैं. जो कोई पावरफुल रहेगा तभी तो कोई चीज मैच करेगा. तो इस मैच करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्मैशिंग करना पड़ता है, स्मैशिंग लगाना पड़ता है, पावर लगाना पड़ता है. ओके. ऐसे आप लर्न कर सकते हैं. ओके. स्मैशिंग मीन्स क्या होते हैं कि जो ऐसे समझिए कि जो यहाँ पे ऐसे समझिए कि स्मैशिंग इज लाइक अ हिटिंग समथिंग फोर्सफुली. कोई चीज हम बहुत जब ताकत से करते हैं उसके लिए स्मैशिंग वर्ड यूज किया जाता है. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंप्रेसिव एंड पावरफुल. एंटोनिम ऑफ द वर्ड वीक, ineffective. Use in जैसे sentence ब्लैक that. स्मिथ मैम, जैसे ब्लैक स्मिथ नहीं होते हैं, वो पीट पीट हाँ के हाँ, बनाते हैं ब्लैक जैसे स्मिथ. हाँ, हाँ, यस एग्जैक्टली, ब्लैक स्मिथ. बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया, क्रिकेट का चल रहा है जी. नो. यूज इन सेंटेंस, द चीफ रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द स्मैशिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द डिश. यहाँ पे सेफ है ना. द सेफ रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द स्मैशिंग presentation of the dish. डिश। Yeah. Now, unbeaten. Beaten means क्या होता है? बीट होना मतलब हार जाना. Unbeaten, जो क्या कैसा हो, जो हारे ना. ठीक है ना. Parts of speech. Yeah, adjective. Okay. हार नहीं मानने वाला. Okay. Meaning of this word unbeaten, हार नहीं मानने वाला. No, synonym of the word very more important. If more important, this word invincible, अजेय. Okay, one word you अजय। can find this word. हाँ, invincible, अजेय. Undefeated. Now, antonyms of the word beaten and defeated. Use in sentence, the champion remained unbeaten throughout the entire tournament. Now, next word, medium pacer. It is a मीडियम पेसर मीन्स क्या होता है? जो मध्यम क्या बोलते हैं, मध्यम तेज गेंदबाज होते हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्रिकेट में. ओके. मीडियम पेसर. अच्छा ओके. मैम, पेस में गति भी पार्ट्स तो ऑफ होती है, स्पीच. पेस। हाँ, पेस मीन्स गति. वही जो मध्यम तेज हाँ, के, उससे लगा वही सकते गति ही तो हैं। होता है ना, गेंदबाज होते हैं जो मतलब. हम्म। हाँ जो हल्की जी. गति तो के उसको बॉलर होते हैं ना, साथ उनके वो लिए बॉल हाँ। को फेंकते हैं. एग्जैक्टली. हाँ मीडियम पेसर, उन्हीं के लिए वर्ड यूज किया जाता है. नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन फ्रेज. ओके. Next, synonyms of the word moderate bowler and medium fast bowler. Antonyms of the word fast bowler and slow bowler. Now, use in sentence, the team captain railed on the medium pacer to control the run rate. Now, brave over. Brave means बहादुर. ओवर समझते हैं जो साहसिक काम करे ना, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा करेजियस हो. ओके. ये भी वर्ड यूज किया जाता है क्रिकेट में, ब्रेव ओवर. Now, parts of speech, noun phrase. Okay. Synonyms of the word courageous set of deliveries. Deliveries मतलब जब हम बॉल को वो करते हैं वहां पे, उसी के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है. जब साहसीपूर्ण कोई भी ओवर खत्म किया जाता है उसको बोलते हैं ब्रेव ओवर. ओके. सिनोनिम एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड टिमिड ओवर, अनइम्प्रेसिव ओवर. कभी कभी एक ही ओवर में कितने रन चले जाते हैं. ठीक है ना. बॉलर पिट जाता है. आगे देखते हैं यूज इन सेंटेंस, इन द क्रूशियल मैच द यंग बॉलर
bold, a brave over under pressure. Now कभी कभी madden over निकल जाता है. Now question 20. Challenging, चुनौतीपूर्ण. Part of speech as active. Synonyms of the word difficult, demanding, and antonyms of the word easy and effortless. Use in sentence, solving complex puzzles can be a challenging task. Now 21. Important word, cameo. What is the meaning of cameo? मीन्स जब किसी भी मूवी में या किसी ड्रामा में जो छोटा और बहुत ही इंप्रेसिव रोल एक्ट करता है उसके लिए कैमियो वर्ड यूज किया जाता है. फर्स्ट वी नो अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन. कैमियो, नाउन. एंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, शॉर्ट परफॉर्मेंस एंड गेस्ट अपीयरेंस. बहुत छोटे टाइम के लिए आते हैं लेकिन अपना इंप्रेशन छोड़ जाते हैं. ओके, नाउ मैम जस्ट लाइक नेक्स्ट. क्लाउन इन प्ले, या पैस्टे वगैरह क्लाउन, नहीं. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली, हाँ हाँ, जो क्लाउन होते हैं, जो फूल होते हैं, विटी करेक्टर हम्म, होते हैं, आते बहुत थोड़ी टाइम के लिए पूरे प्ले में, उनका जिक्र लेकिन भी पूरे बहुत ही प्ले में थोड़ा वो होता है. हाँ, लेकिन वो कैमियो करेक्टर बोले जाते हैं. जैसे आप गजनी मूवी में देख सकते हैं, जो उसमें एक उसका उन्होंने रोल किया था ना, पत्रकार का. ठीक है ना, वो हाँ बहुत छोटा. हाँ, हाँ, पत्रकार का रोल की थी ना कोई एक एक्ट्रेस. तो वही वो तो मेन कैमियो हीरोइन तो करेक्टर वही के रूप होती में. है. हाँ, नहीं नहीं, मेन वो नहीं रहती है. आगे अच्छा देखते हैं, हाँ, यूज इन सेंटेंस. या मेन तो एक्सपायर कर जाती है ना. यूज इन सेंटेंस, द फेमस एक्टर मेड अ कैमियो इन द फाइनल सीन ऑफ द फिल्म. नाउ नेक्स्ट, स्ट्रगल्ड. STRUGGLED, स्ट्रगल्ड. वेल नोन, संघर्ष करना. पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब. एंड synonym of the word, most important, grappled. GRAPPLED, grappled. And fought. Antonyms of the word, flourished and succeed. Use in sentence, the team struggled to adapt to the new playing conditions. Now next, chasing. Chasing means पीछा पीछा करना होता है पीछा. ना, chase करना किसी को. हाँ, CHASING, chasing. Parts of speech, verb and noun both. Okay, it's depend on use. Now synonyms of the word, pursuing and following. Antonyms of the word, leading, front running. Now use in sentence. The detective was chasing the suspect through the crowded street. Now last, capitals. Part of speech, noun. Hindi meaning Rajdhani are well known. And the synonyms of the word, metropolises and major cities. Antonyms of the word, villages and town. Very most important. अगर पूछ लिया जाए कि कैपिटल का एंटीनिम क्या होगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी. ओके, विलेजेस एंड टाउन्स. और सिनोनिम, मेट्रोपोलिसेस एंड मेजर cities. Use in sentence, the capitals of various countries attract tourists with their rich cultural heritage. Okay, now over. Yes, do you have any queries, any problem related, any question? Then we discuss here. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. चलिए हम लोग हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं. वो कैब जो है ये पोर्टल पे भी अब अपडेट हो गई है, और हमने जो है यूट्यूब पे शॉर्ट बना के डाल दिया. नहीं ढूंढे अगर पाए आप तो ग्रुप पे जो है हमने उसका लिंक भेज दिया. ग्रुप पे भी नहीं ढूंढे पाए तो आप मेरे स्टेटस पे जा करके देख सकते हैं. जब तक मैं बनाऊंगा ये वो कैब तब तक डेली लगाऊंगा, तो आप डेली के डेली वहां से भी पा सकते हैं. आप उसका जो है अपने स्तर से नोट्स बनाते रहें. उससे दो फायदे हैं. एक तो जो है आपको लर्न भी होगा, और लिखने से जो है आपके दिमाग में स्थायित्व भी है इसका. चाहें तो बना सकते हैं, वरना एज यू विश, जैसे भी आपको स्ट्रेटजी बनाए. हम लोगों ने कल कौन सी एज पढ़ी थी जी? कल कौन सी एज पढ़ी थी? नियो क्लासिकल में क्या पढ़ रहे थे? आवाज आ रही कि नहीं आ रही हमारी? Yes, sir. यस सर.
हम लोग न्यू क्लासिकल में रेस्टोरेशन पीरियड पढ़ रहे थे कल, है ना। रेस्टोरेशन पीरियड खत्म हो गया था। अब मुझे जो है आगे पोप का एज पढ़ना है। पोप का एज पढ़ने से पहले जो है, एज ऑफ पोप पढ़ने से पहले जो रेस्टोरेशन हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन, और उससे उस पे बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हर एज फिनिश होने के बाद वो करेंगे, तब जाके आगे दूसरी हम एज को पकड़ेंगे। तो अभी रेस्टोरेशन कल पढ़ी थी हम लोगों ने, अब उस पे कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको फटाफट जो है हम प्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोग जो है उनका जवाब देते जाइए, है ना, रिवीजन हो जाएगा। हु वाज द मोनार्क आल्सो नोन एज द मेरी मोनार्क द रेस्टोरेशन पीरियड। बहुत ही शांत और खुश वाले, बड़ी हैप्पी मोनार्की। किसको माना जाता है? जेम्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड। जेम्स सेकंड। अरे भाई, रेस्टोरेशन जेम्स सेकंड जो है के पहले जो उनके भाई साहब हैं चार्ल्स सेकंड, उनका भी तो स्थिति देखिए। चार्ल्स सेकंड ही तो हैं, ऐसे उनके तमाम मिस्ट्रेस थी, बड़े खुशी पूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे थे। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैरोलिन एज निकला था। जी, क्या कह रहे हैं? सर कैरोलिन एज जो है वो इसी से तो मिलता है, इन्हीं के एज में। वो भी तो प्लेजर पे फोकस रहती थी उनकी थीम। सिवरली हाँ, बट हम रेस्टोरेशन, जब आपको रेस्टोरेशन दिया है तो आप रेस्टोरेशन में चूज करेंगे ना। ऑल ओवर अगर पूछा जाएगा तो चार्ल्स फर्स्ट में जा सकते हैं आप, कैरोलाइन एज में। समझ रहे हैं? हालांकि उसी की वजह से जो बिहेडेड भी किए गए वो, लेकिन जब रेस्टोरेशन पूछा जा रहा है तो रेस्टोरेशन तो आप चार्ल्स सेकंड से चालू होता है ना, 60 से। यस सर। समझ रहे हैं मैडम? अगला क्वेश्चन बताइए। हु इज नोन एज द लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड? कल पढ़े हैं हम लोग। जॉन मिल्टन। जॉन ड्राइडन, बहुत सही। जॉन ड्राइडन इज लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द रेस्टोरेशन पीरियड टेक प्लेस? क्या है टाइम पीरियड उसका? सी। बहुत सही। What significant event marked the end of the restaurant era? 1688। कौन सी घटना हुई थी? ग्लोरियस रिवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, बी ऑप्शन। What is the literary style employed by Aphra Behn in ओरोनोको? ओरोनोको इनका एक वर्क है जिसमें जो कौन सा जेनरा है ये ओरोनोको का? ये ट्रेजेडी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रेजेडी है। Which work by John Dryden satirized contemporary political figure and events during the Restoration period? किसमें सटायर किया है? मैक फ्लेकनो। मैक फ्लेकनो, सी ऑप्शन। Who wrote the Orinoco, a novella exploring theme slavery and the colonialism during the Restoration period? अभी तो इसके पहले ही क्वेश्चन डील किए ये। कौन होगा? अफराबेन। अफराबेन। अफराबेन, अफराबेन, बहुत सही। इसमें आंसर लिखे हैं, लगाना नहीं पड़ेगा। Which monarch's reign marked the shift toward a constitutional monarchy during the Restoration? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसने स्थापित करा था? टुवार्ड ए मोनार्क। हालांकि इसमें दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मिल सकते हैं इसमें।
विलियम और मैरी सेकेंड। हाँ, हालांकि दोनों हैं, तो इसमें विलियम पे जाए, दोनों अगर आएगा तो विलियम पे जाएंगे, वैसे मैरी को भी आप मानेंगे, दोनों का जॉइंट रेन था। Which work by John Dryden defends the English drama against French neoclassical ideas? C option, the AC of dramatic poesy. Essay of dramatic poesy. What is the genre that satirizes the behavior of customs of a particular social class, reaching its peak during the Restoration period? Comedy of क्या होगा? manner. कॉमेडी ऑफ मैनर, बहुत सही। Which playwright is often considered one of the masters of the comedy of manners and wrote The Way of the World? William Congreve. खाली पढ़ा विलियम कॉन्ग्रीव को मास्टर ऑफ द कॉमेडी माना जाता है। सही बात, वेरी गुड। What literary device involves cleverness, humor, and intellectual ingenuity in writing, a key characteristic of the Restoration literature? Yeah. विट, Burlesque. विट होगा ना, विट। तो विट होगा क्योंकि इंटेलेक्चुअल है ना। हम्म। Which work by Chan Bunyan is considered an autobiographical account of his spiritual journey and experiences? Pilgrim पिलग्रिम Progress. प्रोग्रेस पे दिमाग नहीं जाएगा, नहीं नहीं, यही तो गलती कराने के लिए ऑप्शन दिया है यहाँ आपसे। ग्रेस अबाउंडिंग The grace टू द bound चीफ the ऑफ सिनर। sinner. बी ऑप्शन लग रहा है, बी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, बी ऑप्शन। Who wrote The School of Scandal, a significant work in the comedy of manner during the 18th century? शेरिडान का है ना, स्कूल फॉर स्कैंडल, शेरिडान। ये ऑप्शन। रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान, सर शेरिडान भी आपको लिखा मिल जाएगा। What significant documents further limited the powers of the monarchy and ensured the rights and liberties of parliament during the restoration era? कौन सा डॉक्यूमेंट था? कल पढ़ा हम लोगों ने, कल जब क्लास किए थे, सबको पता होगा। द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ Which poem by John Dryden commemorates the event of the year 1666, including the Great Fire of London and the Second Dutch War? ये चीज ध्यान रखिएगा, कल अभी हम लोगों ने इस पे एम्फेसाइज किया था। ग्रेट फायर, प्लेग भी आता है, और ये जो सेकेंड डच वार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेट की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, टीजीटी में भले नहीं पूछा जाए, नेट और जीएसटी दोनों में। कौन सा होगा? एनएस मिराबल्स। Alice Marvelous. एनएस मिराबल्स। आपसे पूछा सकता है कि इन विच वर्क जॉन डाइडर डिपिक्टेड द सेकेंड डच वार या इंक्लूडेड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, तो ये दोनों इवेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। Who was the monarch during the Restoration period known for attempts to increase Catholic influence in England,
leading to the glorious revolution. Monarch during restoration period known as the attempt to the increase Catholic. जेम्स सेकंड होंगे, क्यों? वही तो चार है थे। जेम्स सेकंड है बी ऑप्शन। Which literary form did John Dryden contribute to significant in addition to being the playwright and poet? प्रोज ज्यादा लिखे हैं ये, प्रोज पे ज्यादा फोकस किए। डी ऑप्शन सही। देखिए हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी बहुत जगह है, कई कोचिंगों में हो सकता है, कुछ लोग जुड़े हों, नहीं कई कोचिंगों में जुड़े तो कई किताबों से पढ़ी हो, लेकिन उसका सारा का ज्ञान जो है आप यहाँ पर इस्तेमाल करके पुनर्स्मरण कर सकते हैं, मतलब रिकॉल कर सकते हैं। और ऐसी ऐसी चीजें जो है आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आने वाली है, क्योंकि ये कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, किसी किताब में आपको मिलने वाला है ही नहीं ये क्वेश्चन। मिलेंगे? कोई है किताब मार्केट में? वो तो बताओ, हम बिना मतलब मेहनत करते हैं। किसी हमें नहीं मिली इसलिए कब बना रहे हैं, किसी में नहीं मिलेंगे। Which work by Ephra Bain is considered one of the, ये भले क्वेश्चन आपको एज टू एज एग्जाम में न पूछे, लेकिन इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट उठाया जा रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया जाए, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है रेस्टोरेशन कॉमेडी का तो फिर उसको हल कर लोगे आप, वो चीज है। Which work of Ephra Bain considered one of the earliest English novel exploring theme of the slavery and race? अभी ऊपर क्वेश्चन इसी तरह का कवर किए हम लोग, कौन सा होगा? ओरुनोको, ओरुको, जो भी इसको प्रोनाउंस करें। सी ऑप्शन। Which monarch's reign marked the end of the restoration era? किससे खत्म होता है? विलियम थर्ड। रेस्टोरेशन विलियम थर्ड। हालांकि मैरी भी साथ में चिपकी होती हैं, उनकी वाइफ ही हैं, लेकिन ये दोनों अगर ऑप्शन आएंगे तो विलियम पे ही जाएंगे, और विलियम नहीं अगर है तो मैरी को ध्यान रखेंगे। मैरी को इसलिए नहीं ध्यान देते हैं क्योंकि मैरी और विलियम की जब शादी हुई तो मैरी की डेथ पहले हो गई थी, और विलियम का रेन जो है काफी ज्यादा दिन तक रहा। स्टार्टिंग तो दोनों लोगों के साथ में हुई, लेकिन विलियम मैरी की डेथ होने के बाद जो है विलियम ने ही आगे की बागडोर संभाल ली, इसलिए जो है अप्रोप्रिएट विलियम को ही माना जाता है दोनों ऑप्शंस में। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड? एज ऑफ ड्राइडन। During the restoration period, what significant event marked the end of the era? Significant event marked glorious revolution in 1688. क्यों? यही तो होगा, यही होगा। अच्छा, सेकंड डच वार किस ईयर में होता है? सेकंड डच वार किस ईयर में होता है? 1666। थिएटर कब ओपन होते हैं? 1660। 1660। थिएटर कब ओपन होते हैं? 1660। 1660। ग्रेट फायर लंदन कब होता है? सेम ईयर। सेम ईयर। अब देखिए कितने डाटा, कितने फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे यूथ पढ़िए, चाहे घटना चक्र पढ़िए, चाहे अरोरा, चाहे रंजीत सिंह, ये दिमाग में घुसते नहीं है, और कल से अब तक क्या आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। ये फैक्ट जो है भूलेंगे नहीं कभी आप। लगातार क्लास में बने रहिए, छोड़ दीजिए, वो आप पे निर्भर करता है, लेकिन जो फैक्ट आपके दिमाग में मैं घुसेड़ रहा हूँ, स्थायी कर रहा हूँ, वो कहीं पर भी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं, भूलेंगे नहीं आप ये डाटा। ग्रेट फायर लंदन कब हुई थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुई थी, सब दिमाग पे बैठ जाएगा। बी ऑप्शन सही। हु बिकेम द किंग आफ्टर द पीरियड रिपब्लिकन रूल अंडर द ओलिवर क्रॉमवेल? ओलिवर क्रॉमवेल मतलब कॉमनवेल्थ के बाद जो है रेस्टोरेशन किससे स्टार्ट होता है? ये भी तुरंत जान गए होंगे आप लोग, किससे होता है? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स
4 सेकंड। देखिए इसमें उत्तर लिखा है, हम चाहें तो इसको प्रश्न को बता करके तुरंत उत्तर सामने कर दें और आपको बता दें और निकल जाएं, लेकिन उससे क्या है कि जो हमारा उद्देश्य ये है कि जब ये चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो आपके दिमाग पे एक प्रेशर जाएगा, साइकोलॉजिकली आप सोचोगे कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कुछ सेकंड जो है दिमाग आपका बहुत तेजी से काम करता है और वो तेजी से काम आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। वरना जो है प्रश्न देखा, उत्तर देखा, दिमाग को कोई तकलीफ नहीं मिली, कोई भी मेंटली आपको प्रेशर नहीं मिला, इसलिए चीजें बहुत नहीं पाती। सर फिर भूल तो जाएंगे, अगर माइंड में नहीं रख भूल जाएंगे, अगर मैं माइंड में नहीं रखूंगा भूल जाऊंगा, इसलिए हाँ ये भी जरूरी है आपको। बहुत ज्यादा जल्दबाजी के भी चक्कर में न पड़िएगा कि एक मेरा पाठ खत्म किया, अभी 2 वाला भी खत्म कर दिए होते इसी साथ। क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर बता दें, आगे बढ़ते चले, हो जाएगा वो भी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो पर्पज है वो पर्पज इसी तरह से हल होगा। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द रेस्टोरेशन लिटरेचर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.जे. लॉन्ग? रेस्टोरेशन जो लिटरेचर था वो किस चीज पे फोकस था? रिलीजियस थीम, रियलिस्टिक पिक्चर, करप्ट सोसाइटी, वर्चुअल मॉरलिटी। हाँ भी आप होगा क्या? रियलिस्टिक, हाँ यही होना चाहिए। रियलिस्टिक पिक्चर, वास्तविकता तो ज्यादा डिपिक्ट करते थे उस समय की। कोर्टियर लाइफ। Which monarch is reign witness to responding, reopening the theaters, revival of public entertainment, and the more relaxed social atmosphere? किसके पीरियड में? 4 सेकेंड। 4 सेकंड के पीरियड, बहुत सही। Who succeeded Charles II to the throne? उनके भाई साहब तो थे, जेम्स सेकंड। What landmark event led to the establishment of a constitutional monarchy in 1689? ये ध्यान रखिएगा। 1688 में जो है वो होती है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और 1689 में जो है ये मैरी और विलियम थर्ड मिल के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित करते हैं। क्या कह रहा है लैंडमार्क इवेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो क्या हो जाएगा ये? ग्लोरियस रेवोल्यूशन। क्यों? यही होना चाहिए, इसी के बाद ही तो हुआ। Which of the following is not a notable work of John Dryden in poetry? पोएट्री में कौन सा नहीं? एन.एस. मिराबेल्स, A Song for S.T. Celia's, Absalom and Achitophel, The Way of the World. बी ऑप्शन होगा सर, द वे ऑफ द वर्ल्ड, विलियम कॉन्ग्रीव का है। अभी तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा इसको, विलियम कॉन्ग्रीव का है। Which literary genre satire the behavior of customs of particular social class or group, focusing on the witty dialogues and the exaggerated situations? हालांकि आधी जो इसके फीचर्स थे अभी क्वेश्चन एक मिल चुका है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके फीचर्स यहाँ पूछा जा रहा है। सर कॉमेडी ऑफ क्या हो जाएगा इसमें? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसमें जो है फोकस किया जाता था, विटी डायलॉग्स होते थे, अपर सोसाइटी को जो है फोकस कर रहा था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, बी ऑप्शन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमर इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द ह्यूमर इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स? विटी डायलॉग, केवल रिपीटेशन, रोमांटिक इन फिजिकल कॉमेडी, विटी डायलॉग एंड केवल रिपैरिटी होगा ना। अभी ऊपर इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया, यही होना चाहिए। हाँ यही है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन थे आज के। किस चीज पे बेस्ड थे ये? रेस्टोरेशन पीरियड पे। 30 क्वेश्चन ये इतने दमदार, इतने अच्छे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन रेस्टोरेशन पीरियड से अगर पूछा जाएगा
तो इस चीज की गारंटी ली जा सकती है कि 99% जो है क्वेश्चन यहाँ से अलग से पूछने का कोई सवाल उठता नहीं एग्जाम में। इतनी चीजें अगर तैयार हो गई तो फिर रेस्टोरेशन पीरियड से उठने वाले सवाल आप हल कर लेंगे। तो इसलिए सर ये ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है आपको वो मिल जा रही पोर्टल है। पे होंगे अवेलेबल? हाँ, पोर्टल पे भी होंगे, मेरे शॉर्ट में भी आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियो में भी जा करके मिल जाएंगे, आपको पोर्टल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। तो आज जो है हम सेशन जो है यहीं तक के रखेंगे। आज थोड़ा जो है हमको निकलना है, तो आज का सेशन यहीं तक हम रख पाएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग थैंक यू सर। सर। थैंक फिर यू कल सो मच मिलते हैं सर। आपसे। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। Thank you, गुड sir. इवनिंग टू ऑल। Most welcome everyone. थैंक यू टू ऑल।